Assalamu alaikum, Sharjeel. Thank you so much for joining the session. वालेकुम अस्सलाम उमर, क्या हाल चाल है? It's been a very long time. We're trying to plan this, but I'm pretty much sure हम्म, Quarter 4 Pakistan Agency Live is not that easy to manage. And but I'm happy या that we're having this now. Before we या start the session, so basically the main idea of having this session and have you guys in the sessions is to understand how the overall agency career pathway या agency background किस तरीके से चल रहा है, ठीक है. We will be ओके discussing a lot of things about your life कि आपने किस तरीके से start करा, because you have seen a 360 shift of या going from traditional to TV to digital, and now there's Gen Z thing and the AI thing and everything like या going around. We'll be सही है. discussing all the things, but I'll be happy if you can introduce yourself, how's life, how's everything, and then we'll start the session. ओके, थैंक यू उमर फॉर दिस सेशन. आई थिंक मैं बहुत अच्छे से इसको यूट्यूब एज वेल एज लिंक्डइन के ऊपर मैं तुम्हारे सारी स्पॉट्स वगैरह देख रहा था, तो वो बड़ा तुमने कॉम्प्रिहेंसिव वो किया हुआ है. इसका सब सेशन का पूरा एक वो उसका जो पूरा पैराडाइम है, आई थिंक दैट्स रियली नाइस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक ओवरलैप करेंगी, बिकॉज हम इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे आए, क्या क्या सारी चीज़ हुई. सो so I वैसे मैं बता देता हूँ कि आई एम शर्जील अहमद. I have been associated with Manhattan Communication right now for 9 years now. Before that, so मैंने अपना career जो है start किया था from an in-house agency that was Lex and Tobacco. Mm. So तो वहाँ से we'll talk in detail कि वो career path किस तरह है. But then after that I went to Adcom, Spectrum, Saatchi and Saatchi, JWT Grey for a very little time, and then this. Sath Sath I teach, so graphic design and communication arts in Karachi University. Sometimes I do jury at Indus Valley School of Arts. फिर हम FE के अंदर भी jury करते हैं, that I have been doing for a very long time. So ये कुछ चल रहा है. फिर I am developing a graphic design department at Nazir Hussain University as well. Oh, So nice. that's yeah. So So वो basic, अभी pipeline. so basically, Sharjeel is like a one-man army doing multiple things. And सबसे जो main discussion pointer मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि uh, you have experience more than the people who are in the industry, ठीक है, क्योंकि आप 2003 में graduate हुए थे, and it's been more than 2 decades. So it's Yeah. not like you are only seeing advertisement from the perspective कि यार आज क्या चल रहा है या क्या सारी चीजें, ठीक है. And the name जो ऐसा आपने name बताया इसमें Saatchi है, Manhattan, and these are very well known agencies. We will be discussing everything about your experience and all, but I wanted to start the conversation like you have done your bachelor's in arts in Yeah. 2000, you got enrolled in 2000, you graduated in 2003 or 2004. So Right. I wanted to know at that time, मुझे जहाँ तक लगता है Hmm. mindset of the people were like engineering कर लो, डॉक्टर कर लो, these were the successful career pathways, ठीक है. Yeah. Yeah. एंड जब आप उस टाइम की बात कर रहे होते हैं और उस टाइम पे आप ये वाला फैसला लेते हैं और अपने अम्मा अब्बा को बोलते हैं कि यार मुझे आर्ट्स पढ़नी है, तो Hmm. इधर यू आर वेरी मच टैलेंटेड और वेरी मच इनटू फोकस कि नहीं यार मैंने ये चीज करनी है, या Hmm. आपको बहुत सारी चीजों में ना लड़ना पड़ता है, अपने माँ बाप को बताना पड़ता है, क्योंकि टिल द डेट मुझे ऐसा लगता है कि बैचलर्स वो चीज होती है जो हम इस बिहाफ पे करते हैं कि उसके तीन चीजें हैं. एक लोग वो होते हैं जो पैशनेट होते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि यार इसमें नहीं हुआ तो इसमें कर लेते हैं, जो कि आधा फार्मडी या डॉक्टर या इस तरीके के लोग होते हैं, करना कुछ और था, उसमें नहीं हुआ तो चलो इसमें कर लेते हैं. एंड देन Hmm. कम्स टू द पॉइंट कि जहाँ पे बंदा कहता है कि यार कोई भी मेरे पास डायरेक्शन नहीं है तो कुछ नहीं मिल रहा तो आर्ट्स कर लेते हैं, क्योंकि हमारी आर्ट्स को लेकर ना बहुत अलग तरीके का परसेप्शन Absolutely. है कि Yeah. लोग कहते हैं कि यार कुछ नहीं कर रहे तो यार BA आर्ट्स कर लो. Hmm. 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 What Hmm. was your thought process when you were doing in 2000, and how was this bachelor's thing go? So Umair, this is a very interesting question because in around 1997 to 1999, this was a time जब आप इंटरमीडिएट वगैरह से गुजर रहे होते हैं. तो वो टाइम था जिस टाइम के ऊपर मुझे मुझे लगा कि व्हेन माय पीयर्स या मेरे जितने भी दोस्त थे वो फास्ट के और इधर उधर के बारे में बात कर रहे होते थे, Hmm. और इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं होता था कि मुझे क्या करना है, बिकॉज मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती थी, इतना मुझे पता था. Hmm. एंड देन somehow मेरा interest, because I used to sketch, I used to paint,
नॉट प्रोफेशनली, या कुछ मुझे ऐसा कोई खास चीज समझ नहीं आता था बनाना, बट मुझे ये पता था कि आई हैव टू डू समथिंग विद जो जो मैं हाथ से कर सकूं, जो जो मैं ड्रॉ कर सकूं और ये सारी चीजें कर सकूं। सो मेरा कज़न था, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कराची स्कूल ऑफ आर्ट से, हम्म। क्योंकि वो वहाँ का ग्रेजुएट था। तो हम्म। वो कुछ करता था, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर भी काम करता था, पैरागॉन होती थी उस टाइम के ऊपर, हम्म। एंड दे यूज्ड टू मेक टीवी कमर्शियल्स एंड एनिमेटेड टीवी कमर्शियल्स। तो मुझे एकदम सॉर्ट ऑफ क्लिक किया, मैंने कहा कि ओके फाइन, दिस दिस कुड बी द एरिया जहाँ पे हम जाएंगे। नाउ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कोई हमारी नो हाउ नहीं थी इस चीज़ के बारे में। तो जब मैंने घर पे अपने बताया कि आई एम गोना गो डू दिस, तो माय फादर ही वाज लाइक, यार ये तो मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस फील्ड, और हम्म। फ्यूचर क्या होगा, आई डोंट वांट टू सी यू डाइंग हंग्री, वो कोई नहर के नीचे जो है वो पेंट पेंट करके। मैंने कहा वो पेंट नहीं होता, एक ग्राफिक डिजाइन या कम्युनिकेशन आर्ट की सारी चीजें नहीं होती, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने इसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं की। आई जस्ट अप्लाई टू दीज मल्टीपल आर्ट स्कूल्स, हम्म। और वहाँ पे मैंने फिर ये घर वालों ने कराची यूनिवर्सिटी, दिस वी वर द फर्स्ट बैच, तो उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था। तो हाँ, और पैसे भी ऑब्वियसली कम थे वहाँ के, तो 12,500 एट दैट टाइम हम्म। पर सेमेस्टर। अब तो वो भी लाख हो गया। तो जब वो किया तो आई थिंक घर वाले भी थोड़े से ज़रा इजी हो गए, उन्होंने कहा कि अच्छा सही, इतनी ज़्यादा इसकी फीस भी नहीं है, एंड लेट्स ट्राई। बट हम्म। अब एक चीज़ होती है फेथ। अगर आपको बिलीव होता है अपने काम के ऊपर और जिस चीज़ के ऊपर आप करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती, जस्ट वांट टू डू इट एंड थिंग्स सॉर्ट ऑफ, एटलीस्ट इन माय केस, वो रास्ता खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम्म। दैट्स हाउ। बट माय फ्रेंड्स वो आज भी कहते हैं कि हम तुझे कितना डिस्करेज करते थे और ये करते थे कि किस जगह पे जा रहे हैं, बट समहाउ आई न्यू कि दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, So एंड as far as your answer, I believe कि ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि आपको ना अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, या क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैचलर्स इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट डू यू वांट टू डू और आप करके पैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे। आपको आफ्टर फ्यू इयर्स आपको ये रियलाइज होता है कि इट वॉज इम्पोर्टेंट एट दैट पॉइंट, बट आपने जितना भी ग्रो करा है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन इट्स जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द थिंग कि हाँ ठीक है, आपकी सर्टिफिकेशन में एक और सर्टिफिकेट रखा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी का, बट आपको ग्रो वैसे ही करना होता है। ठीक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ कि वंस यू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी वन वे और अनदर, आप कुछ ना कुछ करके ग्रेजुएट होके ही बाहर निकलते हो। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। सो यू ग्रेजुएटेड एंड आई या वांटेड टू नो कि यू स्टार्टेड योर करियर एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। या या पाकिस्तान के अंदर बहुत थिन लाइन है अभी भी ग्राफिक डिजाइन को लेके कि ये अभी भी किसी भी तरीके से ना वाइट कॉलर जॉब को नहीं समझा जाता। या ठीक है, या क्योंकि एक तो इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक यार आप बीबीए करके बैंक के मैनेजर लगे हुए, यू बीइंग अ क्रिएटिव मैनेजर, लेकिन आप ग्राफिक डिजाइनर हो और एक बैंक मैनेजर हो, वो बहुत अलग परसू किया जाता है। ठीक है। और वो अभी अभी तो खैर खैर अभी तो नॉलेज काफी आ गई है, लोगों को पता चल गई ये चीजें, एंड देन पीपल आर इनटू सोशल मीडियाज एंड ऑल, तो आपको माँ बाप को भी ये चीजें पता होती हैं। एट दैट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड, आई एम प्रीटी मच श्योर इट वाज नॉट दैट इजी। ठीक है। सो हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि आप जितना भी काम कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो आप चीजें सीखते रहते हैं, बट जो पहली जॉब होती है ना वो बड़ी स्पेशल होती है, क्योंकि उस वक्त आपको भी कुछ नहीं पता होता, आप बस ट्राई कर रहे होते हैं यार हाउ टू स्टार्ट इट। ठीक है। और करियर काउंसलिंग अगर मैं बात करूं तो यस, यूनिवर्सिटी विल गाइड यू, बट एट द सेम टाइम जब आप बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर, तो आपको पता चलता है इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स नॉट ओनली अबाउट दोस 40 पीपल इन द यूनिवर्सिटी, इट्स अबाउट लाइक थाउजेंड ऑफ पीपल जिन्होंने एक साथ ग्रेजुएशन तो कर लिया, अब लेकिन मार्केट पे ग्रो करना कैसे। तो हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। क्या आपको लगता है कि अब अगर शर्जील उस वाले बच्चे को, उस सेम बच्चे को कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं कि यार अगर ये चीजें कर लेते तो कुछ और बेहतर होता, तो क्या होंगी वो। एक्चुअली पता है, बड़ा लेयर्ड तुम्हारा उमैर सवाल है। एक तो तुम्हें मेरी इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा पता है, तो वो उसके लिए आई थिंक जबरदस्त है। ठीक ठाक तुमने वो की है, इसका होमवर्क किया हुआ है। नाउ नाउ व्हाट्स हैपनिंग इसके, जब हम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कर रहे होते थे ना और पढ़ रहे होते थे, तो हमें बहुत सारी थ्योरीज पढ़ाई जाती थी, और हम्म। हमें बहुत सारे हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, जो कि उस टाइम पे बोरिंग लगती थी। उस टाइम के ऊपर आपको समझ में नहीं आ रहा होता था कि इसका हमारी ज़िंदगी के अंदर रोल क्या है।
बट वो जो चीज़ें होती थी ना, वो आपको एक तरीके से अलग कर देती हैं जब आप और इसके अंदर भी थोड़ी-सी ना, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा कि देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर्स। एक होते हैं जो कि सिर्फ़ टूल ऑपरेट करना जानते हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आप कंप्यूटर स्किल्स के अंदर अच्छे हैं, अगर आपको फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना आता है, तो आप करेंगे। तो एक डिवीज़न ये है विदिन द एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़, और एक डिवीज़न ये होती थी कि तो ये लोग सारे आर्टिस्ट कहलाते थे। हुँ, दूसरे एंड दिस इज़ हाउ हिस्टोरिकली एडवर्टाइज़िंग हैज़ बीन वर्किंग। हुँ, दूसरे स्पेशली इन पाकिस्तान जब कंप्यूटर्स आ गए और ये सारी चीज़ों में, तो फिर दूसरी चीज़ ये होती थी, अगर आपको कॉपी अच्छी लिखनी आती है, अगर आप एड्स बनाना जानते हैं, तो वो उस पे बात कर लेते थे। अब हमारे साथ ये हुआ कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे थे, तो इन्होंने ये सारे डिविजन्स को ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको कॉपी भी लिखनी आनी चाहिए, आपको जो है डिज़ाइन भी करना आना चाहिए, आपको प्रेज़ेंटेशन भी करनी आनी चाहिए, आपको हर चीज़ करनी आनी चाहिए। हुँ, सो तो तो हमें बोलना आया, हमें प्रेज़ेंटेशंस देनी आई, हमें लगा कि वी आर नॉट जस्ट लाइक जैसे ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब का डिफरेंशिएशन तुम की बात कर रहे हो। तो जिस टाइम पे हम लोग ग्रेजुएट करके निकले, तो एक हमारी चिप थी, हमें लगा कि जैसे हम बड़े कोई जो है ना मतलब वी आर इक्विवेलेंट टू एनी, उस टाइम पे एमबीए बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तो हुँ, हमने कहा कि हम उनसे आँखों में आँखें डाल के बात करेंगे, एंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब ये फ़ील्ड ऐसी नहीं कंसिडर की जाएगी। सो जब पहली दफ़ा हम लोग तो हमें यूनिवर्सिटी से ये लैक्सन टोबैको कंपनी वाज़ एस्टेब्लिशिंग देयर ओन इन हाउस डिपार्टमेंट। हुँ, उस टाइम पे जब हम लोगों ने यहाँ पे हमें जॉब मिल गई आते के साथ ही, वो हमारा एक फाइनल ईयर का डिस्प्ले होता है, उसके अंदर हमने अपना काम वगैरह किया था। तो हुँ। उन्होंने हमारी डिज़ाइन स्किल्स देखी, प्रेज़ेंटेशंस देखी, और उन्होंने हमें हायर कर दिया। Okay, okay, fine. You can hear me, right? श्योर, हम Perfect. कंटिन्यू करें Yeah, yeah, बीच या? continue, continue, continue. ओके। अच्छा, तो जिस टाइम पे हम लोगों ने जॉइन किया लैक्सन टोबैको कंपनी, तो वहाँ का भी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि ये तो डिज़ाइन करके आए हुए हैं। हुँ, इनसे आप सिगरेट के डब्बे बनवाएँ। हुँ, और वो जो डब्बे हैं, वो एक चीज़ होती है, टर्म होती है, एक वॉबलर या बंटिंग्स, वो वो बनेंगी, उसको एडैप्ट करें और ये पान के खोपों के ऊपर लगेगी। हुँ, नाउ नाउ पर्सन लाइक मी, जब मैंने ये ब्रीफ सुनी, तो मैंने कहा नो, दिस इज़ नॉट मी, आई एम नॉट गोना डू दैट, बिकॉज़ मेरी कंप्यूटर स्किल्स कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि मैं ऐसा कोई काम कर सकूँ जो कि प्रिंट रेडी हो। और हुँ, दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज़ नॉट द डिज़ाइन व्हिच वी हैव बीन टॉट। हुँ, क्योंकि क्योंकि डिज़ाइन के अंदर तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर एक कहानी होती है और आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये क्या कि कोई डब्बा बना हुआ है और उसको आप एनिमे ऐसे आई डोंट नो, उसके डिफरेंट एंगल्स बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमने पूरा 1 साल लगाया वहाँ पे, क्योंकि माय माय फादर वो ओल्ड स्कूल थे, उन्होंने कहा, भाई इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है, तुम्हें जो है वो 1 साल तो लगाना चाहिए, तुम कर रहे क्या हो अपने करियर के साथ? हुँ, बिकॉज़ अगेन अभी तक वो बड़े क्लूलेस थे कि हो रहा क्या है। नौकरी मिल गई, लेकिन ही इज़ नॉट हैप्पी विद इट। तो मैंने 1 हुँ, साल खैर लगाया, और 1 साल के बाद फिर मुझे एटकॉम हैज़ वर कॉलिंग मी एट दैट टाइम। तो हुँ, उन्होंने फिर लकीली उसी टाइम पे कॉल भी कर ली जिस टाइम पे मेरा छोड़ने का इरादा बना। तो आई हैव जॉइन्ड देम। वो टर्निंग पॉइंट था ऑब्वियसली, क्योंकि अदनान सैयद एंड इमरान सैयद, ये दे वर फ्रॉम द बैकग्राउंड के उनको पता था कि ये डिवीज़न जो है ना, ये ब्रेक होना चाहिए। अगर आप आर्ट स्कूल से कोई स्टूडेंट हायर कर रहे हैं, तो हुँ, वो ये नहीं हो सकता कि आप उसको सिर्फ़ कंप्यूटर पे बिठा के उससे ये बेसिक काम करवाएँ। हुँ, अ, तो फिर मैं डिज़ाइन वाली चीज़ें करता था जो कि कॉन्सेप्चुअल होती थी। तो मल्टीपल ब्रांड्स के साथ हमने काम करना स्टार्ट किया, एंड फिर लकीली उन्होंने मुझे कहा कि तुम टीवी कमर्शियल्स बना सकते हो। आई सेड हाँ, व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट मेकिंग स्टोरीज। तो हुँ। वो बनाई, और फिर करियर का आगाज हुआ सही वाला। So तो your first official break into the advertisement career is from Adcom, ठीक है? या And या one and the very specific question जो मैं इस time पे पूछना चाहूँगा, that is you invested almost like 7+ years in that company, ठीक या है? ये आई एक डिड। बहुत ये बहुत ये एक बहुत बड़ा change है जो हमारी generation, आप शायद मेरी से पहली generation जो आप हैं,
और मेरी से बात की जनरेशन जो जेनजी है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम्म, अगर मैं उस टाइम पे देखूं कि पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग इन 2000 दे हैव दिस मेंटालिटी ऑफ लर्निंग एंड स्टेइंग इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टू सी कि यार हम किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं। तब तब हम ये चीज नहीं देखते थे कि हर एक साल बाद आपने कहा कि यार ठीक है 20,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक हम्म, है। और ना उस टाइम पे इतनी एजेंसीज थी, ठीक है। सो इफ यू आर इन बिग टियर, यू नो, बिग टियर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, तो या तो एडकॉम होगी या तो एक दो और होंगी जो थी। और अब एडकॉम में तो नाम पिटी मशहूर, आपने कहा कि ठीक है जब वैसे इतनी बड़ी एजेंसी में और इतने अच्छे ब्रांड्स है तो 7 साल लगा लेते हैं। बट आपको क्या लगता है कि वो जो चेंज है कि यार एक कंपनी में 5 6 7 साल काम करना और अब चेंज होकर आ गया है साल 1.5 साल 2 साल में चेंज कर लेना, उसमें क्या हम्म, फर्क होता है? मेरा 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 आइडिएशन ये होती है कि मैं सोचता हूँ कि एक कंपनी में जो साल वाली पॉलिसी ना वो भी डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि करियर के शुरू में ठीक है, अगर साल नहीं भी काम करे तो कोई मसला नहीं है, ठीक हम्म, है। बट आई थिंक आपको ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि आप कंपनी से क्या सीख रहे हैं और कंपनी आपको क्या दे रही है इन रिटर्न। ओके, ओके, सो ठीक है। व्हाट वाज द पॉइंट दैट यू थिंक कि नहीं यार एडकॉम के साथ रहूंगा अगले, और 7 साल लगाया आपने? क्योंकि देन मुझे मेरा मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई बंदा 3 साल से ज्यादा किसी कंपनी, उसके तीन मेन रीजन होते हैं। या तो हम्म, कंपनी बहुत अच्छी होती है, या तो कंपनी पैसे बहुत दे रही होती है, ठीक है, या हम्म। तो आप बोलते हैं कि आप कंफर्ट जोन में आ गए, ठीक है अब मैं इसी में रहता हूँ। सो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस आपने जिसकी वजह से आपने कहा कि 7 साल निकालना बड़ा आसान था मुझे वहां पे? अच्छा, आई गो बैक अ लिटिल। जब मैं कराची यूनिवर्सिटी पे जब ज्वाइन कर रहा था ना विजुअल स्टडीज, तो यस, ज्वाइनिंग अ डिपार्टमेंट व्हिच वाज कंप्लीटली न्यू, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, जिसकी जीरो मतलब इंडस वैली या कराची स्कूल ऑफ आर्ट वर देयर फॉर टेन्स ऑफ इयर्स। उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था। इवन एनसीए, तो वो तो बहुत साल पुराना है, राइट? तो वहाँ जाना वर्सेस कराची यूनिवर्सिटी आना। हम्म। तो मैं तो बड़ा वो था, थोड़ा सा जाहिर बात है, जवान आप होते हैं उस टाइम पे, अपने घर वालों से लड़ रहे होते हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ यार, यहाँ पे मुझे नहीं पता टीचर्स कौन से हैं, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आगे वो कितना पुश करेंगे और इस फील्ड के अंदर कैसे जाएंगे। तो देन माय मॉम सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड शी सेड कि अगर स्टैब्लिश नहीं है तो तुम अपने काम से स्टैब्लिश करना, राइट? देन सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टक टू मी। और मैंने कहा कि नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर, सो आई डिड व्हाट हम्म। आई हैड एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग देयर एज वेल। हम्म। जब मैंने एडकॉम ज्वाइन किया ना, अच्छा, तो मेरा जो तरीक़ाकार है ना वो इस तरह से कि जिस टाइम पे मैंने लेक्सन ज्वाइन किया था, तो लेक्सन मेरा छोड़ने की एक वजह ये थी कि मैं आई कुड सी कि लेक्सन का डिज़ाइन डिपार्टमेंट खुद भी कहीं आगे नहीं जा रहा और मैं भी यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। तो इट वाज़ लाइक अ वेरी क्लियर, वो जो पार्टिंग वेज़ वाली होती है ना, तो वो मुझे पता, तो मैंने 1 साल के अंदर छोड़ दी, बल्कि मैं 6-8 महीने में ही छोड़ना चाह रहा था, बट माय फादर स्टॉप्ड। ओके। हम्म। जब मैंने एडकॉम ज्वाइन की ना, तो दिस इज द टाइम व्हेन एडकॉम स्टार्टेड ग्रोइंग। मतलब एक इखलाक साहब का टाइम था जिन्होंने एडकॉम स्टैब्लिश की थी, और उसके बाद इट वाज sort of a kind of a dying brand, and then Imran and Adnan has joined, and then they started getting new clients like National Foods, Tapal। तो उसी टाइम पे इत्तेफाक से मैंने भी ज्वाइन किया। तो आई कुड सी कि एडकॉम इज ग्रोइंग, and I knew that I was growing because I was learning, I was experiencing all these things। पैसे भी साथ साथ अच्छे बढ़ रहे थे। तो देयर हम्म। वाज नो पॉइंट इन थिंकिंग, क्योंकि 1 साल पहले मैं वो चीज़ कर चुका था। तो जो एक जेनजी माइंडसेट होता है कि समझ में नहीं आया फौरन छोड़ो, समझ में नहीं आया फौरन छोड़ो। लेकिन यहाँ पे वी हर हर दूसरे दिन हम कोई पिच कर रहे हैं एंड वी आर विनिंग। तो एक क्रिएटिव के लिए पैसे इज इम्पोर्टेंट। यस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट कि वो आपके बिल पे करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ ये वो वाली बातें होती हैं जो एक बड़ी, मुझे लगता है कि अपने आप को समझा रहे होते हैं कि बिल पे करना बकवास। पैसे इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी वर्थ बन रही होती है और आपको लग रहा होता है कि यार हाँ, अब मैं ग्रो कर रहा हूँ और मैं मार्केट के अंदर कुछ वो कर रहा हूँ, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट बिकॉज यू वांट टू बाय क्लोथ्स और ये सारी चीज़ें, वो पता नहीं क्या होती है। तो एडकॉम ग्रो कर रहा था, मैं भी साथ साथ ग्रो कर रहा था। इस टाइम के अंदर हमने टेलीनॉर पिच किया, हमने वो जीता। इस टाइम के अंदर हमने कॉन्टिनेंटल बिस्किट पिच किया, वो जीता। तो वी वुड जस्ट व्हिन, वी वुड गो इन बोर्ड रूम्स एंड प्रेजेंट। कभी मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आती भी नहीं थी, बट आई डिड व्हाट आई डिड। और हमने बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च किए। तो आप और क्रिएटिव को क्या चाहिए? तो इस टाइम पे 7 साल गुजर गया, फिर उन्होंने मुझे डिफरेंट पोर्टफोलियोज पे डाला। बीच में जॉब ऑफर्स होती थी और बहुत ज़्यादा होती थी। आई वुड गो फॉर इंटरव्यू एज वेल विद अ माइंडसेट कि हम देखें क्या है।
बट देन द मोमेंट वो 7.5 साल गुजरे, फिर वो एक फटीग फैक्टर आ जाता है उसके अंदर, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाता है, आपके एम्प्लॉयर को समझ में आना शुरू हो जाता है कि अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि आपको भी लेट गो कर दें, आप भी उनके साथ चले जाएं। सो Thank you so much for saying this point, क्योंकि a lot of people don't understand this कि it's not कि आपको कितना टाइम तक रुकना होता है, but you need to realize कि किस टाइम पे आपको पता है कि यार नहीं, now this is the time I need to go. या एंड इट्स नॉट लाइक इट्स आई पर्सनली बिलीव कि लोग कहते हैं कि नहीं आपकी वर्थ कम हो जाती है, ये सारी चीजें, बट मुझे ऐसा लगता है जब आप एक हद से ज्यादा कंफर्ट जोन में भी रहने लग जाते हैं ना, तो आपको कंपनी खुद, और आप कंपनी को खुद थोड़ा सा स्लो डाउन लेना शुरू कर देते हैं कि ठीक है यार, इट्स बीन गोइंग। क्योंकि आप जब 7 साल किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, मे बी या 3 साल से भी ऊपर किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, और फिर आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपका कंफर्ट जोन इतना ज्यादा हो जाता है कि आप, क्योंकि 7 साल जब आप एक कंपनी में लगा रहे थे तो बहुत सारी चीजें इसलिए भी आपकी वजह से सेलेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार तुमने 7 साल इस कंपनी में लगाए हुए हैं, तो आप क्लाइंट को समझ जाते हैं और ये सारी चीजें। बट आई थिंक 7 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, एट द राइट टाइम जब आपको लगे कि यार नहीं, दिस इज द राइट टाइम के यहाँ से निकल जाना चाहिए, बिकॉज कहीं जाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ता है। ठीक है, देन यू मूव टू स्पेक्ट्रम। या ठीक अच्छा, है। एक एक और भी छोटी सी चीज़ है, आई थिंक अगर ये आजकल की यूथ समझ रही है इस चीज़ को कि देखें, एम्प्लॉयर भी आपका जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कर रहा होता है। वो आपको फील कराता है दैट कि यस यू आर गुड, बट मे बी यू माइट नॉट फ्लाई। जब आप बाहर की तरफ जाएं और ये सारी चीज़ें, तो थ्रू आउट करियर के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि आपको किस तरीके से जो है ना वो गैसलाइट की ज़रूरत है। ये सारी डार्क साइड है, अगर हम कभी और इसके ऊपर आई डिस्कस थिंक मुझे करें। मुझे ऐसा राइट। लगता है, कि हाँ। मैं बहुत रियल एक चीज को बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कि सबको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए। हुँ, इज, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में काम करें, आप कितना भी पैसा कमा लें, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, इट्स जस्ट अ जॉब। ठीक है, ये आपकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा, ये आपकी लाइफ या, नहीं है। ठीक है, या, बिकॉज व्हाट आई सी इज कि पाकिस्तान में जो चीजें जो नहीं सिखाई जाती, दैट इज कि आप अपनी कंपनी और अपने आप को अलग कर नहीं पाते। ठीक या, है, या, या तो लोग एज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के अंदर बहुत मिले हुए कि भाई उनका हुँ, जीना मरना हर चीज उनकी कंपनी है। ठीक है, हाँ, या दूसरी साइड ये होती है कि लोग बोलते हैं कि ठीक है, हमें कोई वही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपको एक छोटी सी थिन लाइन रखनी चाहिए कि ठीक है, दीज आर माई प्रायोरिटीज फॉर द डे, और मैं इसको करूंगा, और जरूरी नहीं और एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो जब आपको छोड़ेंगे या जब आप उनको छोड़ेंगे तो वो आपको पैसे नहीं देंगे और आप उनके लिए काम नहीं करेंगे। दैट्स इट, दिस इज दैट सिंपल। ठीक है, या, इसको या, इसको कॉम्प्लिकेट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सही टाइम पे अगर आपको लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ। एंड एक्सपीरियंस इज अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। के हो सकता है कि दो लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और दोनों के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। एक बंदा सिर्फ ऑफिस जा रहा है और वापस आता है 10 साल तक, और एक बंदा 10 साल लगातार उस चीज पे काम कर रहा है। तो एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है, किसी 10 साल के बंदे का एक्सपीरियंस किसी 4 साल के बंदे का एक्सपीरियंस, 4 साल वाला हो सकता है आपसे ज्यादा चीजें समझता हो, क्योंकि वो शायद आपसे ज्यादा टाइम उस चीज में लगा रहा है। तो अपनी 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 लिमिट को भी समझना चाहिए, और जरूर ये चीज देखनी चाहिए कि व्हाट इज द राइट टाइम टू मूव। ठीक या, है, क्योंकि व्हाट आई सी इज कि आपके सवाल, मेरा अगले सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया, क्योंकि जब आप 7 साल इन्वेस्ट करके दूसरी कंपनी में आते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होता है यार कि क्या चीजें नहीं करनी। हाँ। ठीक है। तो मैं वो ये रियलिटी यही है ना कि आप 7.5 साल, 1 साल, 7.5 साल आप सीख के आते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें आपने गलत की हैं, क्या चीज़ें आपने सही की हैं, क्या चीज़ें आप जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वक़्त ज़ाया किया, खाली ये सारी चीज़ें। तो वो आपको समझ में आना शुरू होता है। देन आई आई सॉर्ट ऑफ जॉइन्ड स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम के शुरू के ही 3-4 महीनों के अंदर बहुत अच्छी-अच्छी कैम्पेन्स मैंने कर ली। नाउ जब आपने शुरू में बहुत अच्छी कर ली, तो आगे के 6 महीने के अंदर आप क्या करेंगे? वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं आया या फिर आपने एक्सेल नहीं किया, एंड दिस फील्ड इज़ वेरी टेक्निकल, मतलब उसके अंदर ये है कि कुछ चीज़ों के अंदर आपको आ जाती हैं स्टोरीज़, कुछ चीज़ों के अंदर आपको स्टोरीज़ नहीं आती, कुछ बड़े फ़ॉर्मूलिक एड्स होते हैं, जिसमें आपको पता होता है कि यार
इतने इतने सेकंड पे ब्रांड आना है, ये इसका ब्रांड वर्ल्ड है, ये इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें करना है। आई कुडंट। तो वो मैं समझ गया कि यार यहाँ पे तो कहानी नहीं बन रही। तो जब पता चल गया कहानी नहीं बन रही, तो एजेंसी को भी पता चल गया, उनके बॉसेस को भी पता चल गया कहानी नहीं बन रही। तो फिर ये होता है कि आप फौरन देखते हैं कि ओके फाइन, 7.5 साल आपने यहाँ पे लगाए थे, अगली में आपने 6 महीने के अंदर ही आपका ग्राफ जो है वो नीचे जाना स्टार्ट हो गया, कैंपेन्स अच्छी हो गई हैं, बट इसके आगे क्या है, कितना आगे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो फिर अब आप उसको ये सॉर्ट ऑफ जेंजी माइंडसेट समझें, या फिर आप उनकी तरफ से समझें कि वो बड़े ज़्यादा ब्रूटल होते हैं, आपके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, या क्या। फिर बात नहीं बनती, अगेन वो वही वाला एटीट्यूड आ जाता इसमें है कि इट्स इसमें नॉट वो। इसमें एक और चीज भी होती है ना कि आई पर्सनली बिलीव कि जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है ना, वो जरूरी नहीं कि आपका हर डिसीजन सही हो। ठीक है। या। अगर मैं आज से 10 20 15 साल पहले जाके जब आप एडकॉम ज्वाइन कर रहे थे, तब मैं अगर आपसे यही सवाल पूछता क्या इज इज द राइट डिसीजन, तो आपको शायद तब भी नहीं पता होता। इट्स अ वेरी रिस्क फैक्टर, आपको ना थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके देखना पड़ता है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट बीइंग एज अ ह्यूमन अपने आप को देना चाहिए कि हो सकता है मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, बिकॉज दिस इज वॉट लर्निंग इज ऑल अबाउट। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम तो पिछले 10 साल से एक चीज कर रहे हैं और अब हम जो करेंगे वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बट सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ओके फाइन, ये फैसला सही था या ये फैसला गलत था, ये चीज सही थी या ये चीज गलत थी। क्योंकि आफ्टर लाइक डूइंग फॉर थिंग्स लाइक 15 20 years आपके लिए शायद उतना मैटर भी नहीं होता। आई एम अज्यूमिंग जब आप स्पेक्ट्रम में उस टाइम पर होंगे, तब आप जो चीजें सोचते होंगे अब वो इतना मैटर भी नहीं करती होंगी। although it's just like 1.5 year or 1 year or so much some months, but then you realize कि जब आप सही टाइम पे, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज सिखानी चाहिए लोगों को और ये चीज लोगों को पता होनी चाहिए कि आप उस टाइम पे अगर सही डिसीजन ले रहे हैं, जस्ट बी विद इट, क्योंकि या। फ्यूचर में हो सकता है कि आप उसकी जरूरत भी ना पड़े। हाँ। एंड मूविंग फॉरवर्ड आपने इसी तरीके से चीजें करी। गोइंग फॉरवर्ड यू हैव ऑलमोस्ट वर्क इन ऑल द बिग एजेंसीज। ठीक है। कोई एक एजेंसी नहीं है जो आपने छोड़ दी हो। आई थिंक एक आधी होगी शायद, या तो अच्छा, जिसमें आपको। मेरा मेरा थोड़ा सा ये है कि मैंने खुद से जो है ना, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की कि मुझे यहाँ पे काम करना है और ये सारी चीज़ें करना है, वैसी सिचुएशन आई नहीं। हर दफ़ा ये हुआ कि नौबत आ गई कि जैसे छोड़नी ही है जगह। सो बट आई थिंक इसके भी ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि देर आर पीपल दैट आई नो, आई हैव फ्रेंड्स ओवर हियर जो कि आधे गूगल में, आधे रेवोलूट में, आधे कहीं पर हैं, एंड वी यूजुअली सिट एंड टॉक एंड वी थॉट कि यार, ever imagine of this whole world talking about सीवीज ऐसी होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कनेक्शन बिल्डिंग और फलाना और धमाका, बट यू नीड ऑल दिस व्हेन यू डोंट हैव द जॉब। या। जब आपकी जॉब होती है आपको कुछ नहीं चाहिए होता। हम्म। दिस इज व्हाट आई थिंक इज, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर लिविंग इन वन एंड जीरोस। ठीक है। इधर आपकी जॉब है तो आप बस उसी में बिजी हैं, एंड देन यू डोंट डू एनीथिंग एल्स। ठीक है। बट देन यू रियलाइज के देयर इज अ जीरो पार्ट। जब वो जीरो पार्ट आता है देन यू आर डूइंग दैट, बट दैट डिपेंड्स। वो भी एक मुझे ऐसा लगता है एजेंसी लाइफ इज अ वेरी वेरी 360 थिंग। ठीक है। हो सकता है एक दिन आप बहुत काम कर रहे हो सकता है एक दिन आप कुछ भी ना कर रहे हो। ठीक है। कभी कभार कुछ कैंपेन्स, कुछ ऐसे मंथ महीने होते हैं जिसमें आप कहते हैं यार मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं है, और कभी कभार आप कहते हैं मेरे पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। आई या। थिंक या। दिस इज हाउ दिस फील्ड लुक लाइक, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ, वो जो मैंने आप स्टार्टिंग में कहा था ना, इट्स नॉट लाइक अ कैलकुलेटेड एक्सेल शीट काम कि आपको रोज जाना है बैंक में चीजें भरनी है या आपने चीजें डाटा भरना है। ठीक है। दिस इज, आई थिंक दिस इज द क्रिएटिव फ्रीडम जो आपके पास होता है बीइंग इन दिस फील्ड, कि समटाइम्स आपको लगता है चीजें सही हैं, सामने वाले को नहीं लगता। समटाइम्स आपको लगता है चीजें सही नहीं है, सामने वाला कहता है नहीं यार यू नीड टू वेट। ठीक है। और एजेंसी पूरे पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि इट्स लाइक अ हॉपिंग थिंग। ठीक है। आप इधर से इधर जाते हैं, उधर वाले इधर आ जाते हैं, इधर वाले उधर चले आते हैं, उधर वाले इधर आ जाते हैं, बिकॉज टोटल ना वो 10 15 ही है। ठीक है। और वो 10 15, क्योंकि एक बड़ा मजाक तो नहीं कहता, एक मैं बड़ी मुझे बड़ी हंसी आती थी इस चीज पे। व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान वर्किंग इन दराज, तो वी वर लुकिंग फॉर सम मोशन डिजाइनर्स एंड हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल्स हमने देखी।
एंड देन आई रियलाइज कि यार शेल पाकिस्तान पे पूरे दुनिया के हर बंदे ने काम करा हुआ है पाकिस्तान के। और हम्म, एंड आई वाज लाइक यार ये हो कैसे रहा है, मतलब क्योंकि हर हम्म, बंदा लिख रहा है और हर बंदे के पोर्टफोलियो में भी चीज है। देन आई रियलाइज कि पाकिस्तान में ना एक ब्रांड के अंदर 100 लोग काम करते हैं और वो हम्म, अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहे हैं। या, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि शर्जील ने 2005 में शेल पे काम करा हो और फिर वो हम्म, शेल ने किसी और एजेंसी को ज्वाइन कर लिया हो 2008 में, तो 2008 में किसी और बंदे ने करा हो, फिर 2010 में बिल्कुल, किसी और ने करा हो। देन यू नीड टू रियलाइज कि आपने ब्रांड को इमेजिन नहीं करना, आपने उस थॉट प्रोसेस को देखना है। क्योंकि अगर मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ तो जो पाकिस्तान में सारे एजेंसी साइट पर हैं, हर बंदा हम्म, किसी ना किसी ब्रांड में काम कर रहा है। और जो एजेंसी में ना वो तो मतलब कोई नेशनल फूड में काम कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहां कर रहा है। ठीक है, देन यू नीड टू रियलाइज कि आप अपने आप की किस तरीके से चेंज लेकर आते हैं, अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस था। ठीक है, या, मुझे ऐसा लगता है लोगों को इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। समटाइम्स पीपल गो विद ब्रांड्स। आई पर्सनली बिलीव यू शुड हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट कि यार ठीक है, ब्रांड छोटा था या बड़ा था, उसके लिए जो मैंने चैलेंज ऑफ कोर्स, लेके या, उसको या, करा था वो अलग था। क्योंकि हम्म, एट द एंड ऑफ द डे अब तो खैर आइडिएशन की बहुत इंपॉर्टेंस समझी जाती है, लेकिन लोगों को अपने आप को सेल करना भी नहीं आता था। ठीक है, या, व्हाट आई पर्सनली बिलीव के इट्स नॉट विच एजेंसी दैट यू वर्क, इट शुड बी व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क दैट यू हैव डन। क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप बेशक आपने उन कंपनीज को छोड़ा, उन एजेंसीज को छोड़ा या आपको निकलना पड़ा, बट यू आर स्टिल ऑन अ वेरी गुड टर्म्स विद देम। ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उससे या, भाग नहीं सकते। कोई 50, 100, 1500, 2000 लोग हैं जो आपस में पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ठीक है, जिनको आपस में पता है कि ये यहाँ है, ये वहां है, ऐसा है, ये वैसा है, वो ब्रांड ये कर रहा है, वो दिस इज द सेम थिंग गोज विद द प्रोडक्शन। सबको पता होता है कौन सा कमर्शियल कौन शूट कर रहा है। ठीक है, एंड दे आर लाइक, लोगों को पता नहीं चलता कभी कभार तो दो अलग अलग शूट हो रहे होते हैं और वो आपस में ही कोलैप्स हो रहे होते हैं, यहाँ वाला वहां चले जाता है, वहां ले जाता है, अच्छा तुम ये करो। क्योंकि बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है। हमने इंडस्ट्री, बन, बिल्कुल, हमने बनाया हुआ बहुत बड़ा है, लेकिन इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है। ठीक है, या, तो या, आई थिंक या, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जो अगला अगले सवाल में पूछना चाहूंगा दैट इज यू बीइंग इन द एजेंसी फॉर मोर देन 2 decades। ठीक है, या, मुझे आप बताएं कि आपके लिहाज से पोर्टफोलियो की डेफिनेशन है क्या। ठीक है, ओके, क्योंकि या, जब लोग मुझसे पूछते हैं या मैं लोगों से पूछता हूँ, हम देख रहे होते हैं, अब ना लोगों को ना ऐसा लगता है पोर्टफोलियो का मतलब है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो दिखा दूं। बट आई थिंक दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो की सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो होती है वो प्रोडक्ट डिजाइनर्स की होती है, क्योंकि वो केस स्टडीज बनाते हैं। कोई भी आपके फाइनल काम देखने में इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि आपको उसको भी पता है कि ये पूरी चीज जो है ना एक बंदे ने नहीं बनाई। या, या, एजेंसी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कहेंगे ये पूरा मैंने करा है। लेकिन यू शुड नो कि हाउ टू स्टोरी में आपको दिखा कैसे सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आया था, इस प्रॉब्लम का मैंने ये आइडिया ढूंढा था और ये मैंने सॉल्व करा है। क्योंकि अब मैं देख रहा होता हूँ लिंक्डइन पे भी, अगर आप इनिशियली किसी भी सोशल मीडिया पे देखें तो एवरी वन इज शेयरिंग वन एड और वो 10 लोग शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें 10 लोगों ने तो काम करा है। देन यू बट व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो। अगर मैं आपके पास ऐसा नॉर्मल अभी रिसेंट ग्रेजुएट आता हूँ, तो आप किस चीज को देखते हैं कि यार ये चीज इस बंदे के अंदर अच्छी है। ठीक है, इसको पिक करना चाहिए, पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। अच्छा, उमर, ये अच्छा, क्योंकि ये वो वाला सवाल है जो शायद पिछले वाले सवाल से कंटिन्यू है, करता है। नाउ माय पॉइंट इज कि आप जब इस फील्ड के अंदर है ना, तो एक आपका जो वो है ना, एक रियलिटी है कि आप कितने ज़्यादा आपकी इंडिविजुअलिटी या आपकी अप्रोच जो है ना वो ऐसी है कि जो दूसरों से मुख्तलिफ है, बिकॉज येस यू आर डिफरेंट, बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर इन द फील्ड। तो 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 अल्लाह ने आपको वो पर्सपेक्टिव भी दिया है जिसकी वजह से आप देखते हैं दुनिया को एक डिफरेंट नज़रिए से। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट पोर्टफोलियो, तो व्हाट आई सी इन यंग पीपल कि यार, अ, आपने क्या ऐसा काम किया है जो कि बाकियों से डिफरेंट है, जो कि कोई बाकी जो 10 दूसरी एजेंसीज भी काम कर रही होती है ना, वो आपको अलग दिखा दे। तो फॉर इंस्टेंस इफ यू आस्क मी, तो आई हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क जो कि आपको मेरे तमाम कामों में नजर आएगा, राइट। तो चाहे वो विजुअली बहुत ज़्यादा ब्रेव काम हो, चाहे वो इमोशनली कुछ कुछ हो, तो देयर विल ऑलवेज बी अ थिंग about seeing things sort of differently. That's your portfolio.
लेकिन अगर फर्ज कर लें कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि एक ही काम 6 लोग आके अपना पोर्टफोलियो के हमने भी इस पे काम किया, हमने भी इस पे काम किया। इवन जब हम भी अपने ऐड बनाते हैं तो आधी डिजिटल एजेंसीज जो हैं वो उसको शेयर कर रही होती हैं, द न्यू वर्क। इवन द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर वो भी अपना काम ही इसी तरीके से शेयर कर रहे होते हैं कि हमने ये चीज़ बनाई है। बट कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको मैसेज करे और कहे कि यार शर्जील तूने ये काम किया है, आई नो दिस इज यू, दिस इज योर राइटिंग, दिस इज योर स्टाइल ऑफ वर्क, एंड दैट्स योर पोर्टफोलियो। आप किसी का लेके ये सारी चीज़ें करके नहीं बना सकते। लोगों के अंदर भी इतनी ज़हानत होनी चाहिए और उस इंसान के अंदर भी इतनी वो होनी चाहिए, एक डिफरेंट काम करने का तरीका, तो वो आपका पोर्टफोलियो बनता है। अदरवाइज एवरी असाइनमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर लुक्स द सेम, एवरी लोगो लुक्स द सेम। आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन व्हाट हैव यू डन डिफरेंटली, दैट ओनली, वो मेरे लिए काफ़ी होता है। तो जब मैं हायर कर रहा होता हूँ लोगों को, तो मैं उनसे यही चीज़ पूछता हूँ कि भाई आप चीज़ों को क्या किस तरीके से देखते हैं। अक्सर तो आप बड़े एडहॉक बेसिस के ऊपर हायर कर रहे होते हैं क्योंकि अब मार्केट में लोग ही नहीं है, या दूसरे ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो एक कल्चर है वो भी कहीं और ही जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। दिस इज व्हाट आई फील, एंड दैट्स अ रियलिटी, वी नीड टू बाइट इनटू दैट। लेकिन this is what your portfolio is, the way you talk, the way you write, the way you write your post, even the way you design, and the way you make your ads, या आप क्लाइंट से किस तरह से बात करते हैं, वो आपका पोर्टफोलियो इवेंचुअली बन जाता है। लेकिन ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं जो बिहान्स के ऊपर 50,000 लोगों ने चीज़ें शेयर की हुई होती हैं, आई डोंट कंसिडर देम देयर पोर्टफोलियो। आप मुझे स्केचेस दिखाएं, आप मुझे वो दिखाएं जो आपने हाथ से काम किया हुआ है, आई थिंक आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन आई थिंक दैट। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इटरेशन ऑफ एन इटरेशन ऑफ एन इटरेशन। ठीक है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल एफर्ट दैट यू डिड जो आपका अलग है। या क्योंकि सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड अ गुड डिजाइनर और अ बैड डिजाइनर। या इज जस्ट अबाउट द अप्रोच एंड द रिसर्च। ठीक है, बिकॉज व्हाट आई बिलीव के इन पाकिस्तान देर आर सम सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट जो कि आपको 6 महीने में डिजाइनर का कोर्स की डिग्री दे वो दे देते सर्टिफिकेट। बट देन यू नीड टू रियलाइज कि आर यू गुड इन कॉपिंग थिंग्स और आर यू गुड इन क्रिएटिंग थिंग्स। ठीक है, एब्सोल्युटली। एंड इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन दैम आई थिंक फिर जरूरत नहीं होती कि आप 100 चीजें करें। क्योंकि दिस इज द वेरी मेजर डिफरेंस दैट वी डिड इज दैट वी यूजली सी इसके आप बेशक 10 चीजें बनाए लेकिन आपको 10 चीजों को बेचना आना चाहिए रादर देन आप 100 चीजें बनाए और आप उसको बेचना ना आता। या ठीक है, क्योंकि तो यू नीड वो, हाँ, यह कहानी बनानी आती है ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। वो जो स्टोरी टेलर लिखा होता है ना हर एक ने अपने बायो में, मुझे तो मुझे वो, तो खैर खैर मैं तो ये सोचता हूँ कि हम्म, हम बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर 7 इयर्स। ठीक है, और मैं बचपन से जितने भी ऐड देख रहा हूँ एज अ ले मैन एज अ व्यूअर अगर मैं बात करूँ ना। ठीक है, हम्म, आई लाइक द एड्स जो कि 80s 90s और 2000s में थे। ठीक है, हम्म, बिकॉज आई डोंट सी एनी सिंगल एड जिसका कॉल इतना स्ट्रांग हो जैसे नाच पान मसाला मसाले का एड का था। या ठीक या है, या जिसका जिसका एड का आइडिया इतना स्ट्रांग हो कि मुझे अभी तक याद रहे। हम्म, ठीक है, हम्म, हमारे यहाँ अब अगर मैं एजेंसी टर्म में बताऊं चीजें ग्लैमर बहुत करती हैं। ठीक है, हम्म, क्योंकि एट द सेम टाइम यू कैन यू कैन यूज मल्टीपल कैमरास गुड क्वालिटी लाइट्स एंड ऑल। ठीक है, बट यू कांट जनरेट द रियल स्टोरी। आपका अगर स्टोरी अच्छी होती है क्योंकि अब ऐसा लग गया है कि मुझे एजेंसीज की इसमें गलती नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ब्रांड्स अब आपको ब्रीफ ये करते हैं कि यार उस अंग्रेजी ब्रांड ने ये करा था, जस्ट कॉपी इट। हम्म। ठीक है, एंड वी द- you're saying द- something। या वो इतनी आराम से नहीं कहते कि उसको कॉपी कर लो, मतलब ये जो बड़े सारी पोस्ट वगैरह आ रही होती हैं कि वो उसको इस तरह 100% कॉपी कर लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। बट there's a way of saying that कि वो एक तरीका होता है जिसमें आपको शायद पता ही नहीं होता, बिकॉज दिस इज अ कॉर्पोरेट कल्चर एट द एंड ऑफ द डे। हमें थोड़ा सा उसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे सारे आर्टिस्ट टाइप नहीं बैठे हुए, वो अपना वो भी सेल कर रहे हैं, अपना अच्छा, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक तो छोटा सा सवाल है इस जगह पे, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट sure, डू यू थिंक एजेंसीज आर वर्किंग
एज अ क्रिएटिव काइंड ऑफ अ थिंग, या एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि यार ब्रांड किस में खुश है? दोनों चीजें होती हैं। देखिए, आपने ना अपने आप को पुश करते रहना होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस कराते रहना होता है, टिल द पॉइंट कि कोई ना कोई, देखिए, एक कमरे में अगर 10 लोग बैठे हुए हैं ना, तो 10 लोग एक बात तो नहीं कर रहे होंगे। हम्म। उसके अंदर से कोई एक इंसान ऐसा होगा जो कि समझ जाएगा, वो कहेगा ओके फाइन। तो हर दफा आपको सिर्फ वही नहीं बोलना होता जो कि क्लाइंट चाह रहा है। आपको वो भी बताना होता है कि जो कि आपकी आवाम एक्सपेक्ट करती है या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एंड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई थिंक क्रिएटिव से ज़्यादा सेंसिटिव, और सेंसिटिव इन द सेंस के सेंसिटिव नॉट इन दोज वर्ड्स के, यू आर टू सेंसिटिव, बट समवन हु हैज़ अ सॉर्ट ऑफ आई, लोगों को देखने के लिए कि वो किस तरह खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, क्या उनके इश्यूज हैं। और ये खाली रिसर्च से नहीं निकलता, ये ऑब्जर्वेशन से निकलता है कि आप देख रहे हैं उनको कि वो किस तरह से वो करते हैं। तो अगर आपके पास ये सारी बैकिंग है ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मतलब वो क्लाइंट किसी एक हद तक कह सकता है कि नहीं हमें ये चाहिए, बट वो आपकी बात भी मानते हैं। तो मैंने तो अभी तक जितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आई थिंक दैट्स व्हाई आई एंजॉय दिस फील्ड एज वेल। आज तक मैं बोर नहीं हुआ, क्योंकि या तो आप कन्विंस हो जाते हैं या आप कर लेते हैं, और यूजुअली हम कर लेते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस, क्योंकि ये एज अ लेमैन डिबेट रहती है बहुत सारे लोगों की, बट आप लोग वो चीजें बनाते हैं तो आप शायद मुझे अच्छे तरीके से बता सकें, व्हाई डोंट वी आर प्रोड्यूसिंग एड्स लाइक इंडिया? ठीक है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग देम लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि थ्रू आउट अगर मैं देखूं तो जिस चीज के अंदर हमने सबसे ड्रास्टिकली चेंज लाया है वो हमारी हम्म। क्वालिटी में लाया है। ठीक है, आई वी आर प्रोड्यूसिंग quality wise one of the very best commercials overall in the world. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल but at बिल्कुल the बिल्कुल। same time, why don't we have people, or do we have the people, but why we are हम्म। not producing ads like Swiggy, Zomato, Shadi.com? You have seen multiple ads. ठीक है, हम्म। ठीक है, और हम उन सोसाइटीज को, हम उन ट्रेंड्स को उस तरीके से फॉलो क्यों नहीं कर पाते जैसे इंडिया कर रहा है? ठीक है, क्या उनके पास टैलेंट ज्यादा है? क्या उनके पास ईज ज्यादा है? क्योंकि अगर मैं देखूं तो हम अभी भी एरियल को हु हा करके ही बेच रहे हैं। सही। ठीक है। अच्छा, उमैर, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और इसके अंदर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वुड आस्क द सेम क्वेश्चन टू द सीनियर्स इन द इंडस्ट्री, जब भी कोई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी इस तरह से। एंड समहाउ आई बीन पार्ट ऑफ द सेम इंडस्ट्री। तो यह हमें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है और समझ में आना शुरू होती है बात कि देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी एक एक बहुत बड़ा कल्चर है, और वो बड़ा कल्चरली रिच, उनकी जो है वो स्टोरीज भी होती हैं, और उनका रहन सहन और उनकी सारी चीज़ें, ठीक हम्म। है। दे डोंट शाई अवे मेकिंग फन ऑफ द सेम कल्चर एज वेल, राइट। हम्म। तो वो मियाँ बीवी के ऊपर भी स्टोरी बना देंगे। वो जैसे इंडिया का कल्चर है कि औरतें अपनी चूड़ियाँ तोड़ती हैं जब उनके शौहर मर जाते हैं, और वो अपनी बिंदिया सिंदूर हटाती हैं। ओके, so imagine an ad जिसके अंदर किसी का शौहर मर गया है और वो चूड़ियाँ तोड़ रही है और अपनी बिंदियाँ हटाने की कोशिश कर रही है, और वो बिंदियाँ हट रही नहीं है। ओके। क्योंकि वो भिंडिया जो है वो बड़े अच्छे किसी मार्कर से बनी हुई है। वो किसी परमानेंट मार्कर से बनी हुई हाँ, है, राइट। एंड इट्स अ एंड डॉलर्स एड। या और उसके बाद टू और उसको स्ट्रेच करते हैं वो लोग, और वो कहते हैं कि वो बंदा घास फूस के वापस से उठना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो कहते हैं परमानेंट मार्कर इट्स गोज अ along with। डॉलर की कैंपेन थी वो। Yeah, so imagine, right? Can we do that? Matlab, yes, I can make stories on paper. I can share you hundreds of stories which are tongue in cheek, which can question the culture and all that. लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास फ्रीडम इसलिए उनको मिल जाता है बिकॉज उन्होंने बहुत सारी अपने ऊपर बाउंड्रीज नहीं लगाई हुई, राइट। हम्म। लेकिन अब आप एक क्रिएटिव के लिए ये भी एक सच्चाई है कि आप जितने ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होते हैं उतना ज़्यादा क्रिएटिव फ्लरिश करता है। सो हम्म। सो
इट्स नॉट दैट कि इंडिया सिर्फ अच्छे कमर्शियल बनाते हैं, इंडिया वाले रेगुलर कमर्शियल्स भी बनाता है जो कि हम नहीं देख सकते। फॉर इंस्टेंस उनके जो तेल के ऐड होते हैं या उनके जो सोप साबुन वगैरह ये सारी चीज़ों के ऐड होते हैं, तो वो कुछ रेगुलर भी होते हैं, कुछ वो बहुत फनी भी होते हैं। अब उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनके पास एक्टर्स बहुत सारे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है वो एकदम बड़ी होके नज़र आती है। फिर हमने फेविकॉल का देखा कि किस तरह से उन्होंने उस ब्रांड को लेके वो बिल्कुल देसी स्टाइल के लो बजट स्टाइल के एड्स होते हुआ करते थे। तो हम वो देख के बड़े हुए, तो ये सारी चीज़ें सच्चाई हैं। यस, तो क्रिएटिविटी मुझे लगता है कि वो होती इस तरह से कि मैंने कोई चीज़ बनाई बोल्ड, और वो सारी चीज़ें और कल्चर को एक तरीके से शॉक देने के लिए किसी और ने मेरा देखा देखी बनाया, तो ये चीज़ ग्रो करती है। हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर द ओनली थिंग जो कि हमें अभी लगती है, हमें लगता है कि जब तक फ्लैशी चीज़ें नहीं होंगी, हाई क्वालिटी बिग बजट चीज़ें नहीं होंगी, तब तक हमारा कंज्यूमर उसको देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसको चीज़ को लेगा नहीं। तो हम कर रहे होते हैं चीज़ें। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कैनवुड की कैंपेन्स देखी हो, नॉट दैट आई हैव मेड देम, ज़हीर हैज़ मेड देम, बट दे हैव डीप स्टोरी टेलिंग, जिसके अंदर ये सारा काम हुआ है। इसके अलावा अगर ये जो जिस टाइम पे ये रमज़ान के एड्स बना करते थे, उस टाइम के अंदर वी हैव डन एड्स व्हिच आर वेरी इमोशनल, व्हिच आर रियल स्टोरी टेलिंग। लेकिन आप उसको कितना प्रमोट करते हैं, वो कितना अक्रॉस होता है। फॉर इंस्टेंस वी हैव डन दस्तक, व्हिच वाज स्प्लिट द प्लेट कैंपेन फॉर दस्तक कुकिंग ऑयल। तो वो जब बनाए तो वो इंडिया ने भी उसको शेयर किया, और इंडिया ने उसके ऊपर टिकटॉक बनाए। इट वाज अ स्टोरी अबाउट हाउ यू शेयर द फूड, जो कि हुँ, आपका लेफ्ट ओवर फूड रह जाता है, एंड व्हाई वी हुँ, डिड इट बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर फूड वेस्टेज बहुत होती है। हुँ। सो और मैकडॉनल्ड्स का वी डू वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट, तो वो इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से यहाँ पे हिट अब नहीं होती हैं। मैं इसको ये समझाऊँ कि आप ये कह रहे हैं हम्म, कि येस वी हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस दोज़ कमर्शियल्स बट या हमारा पब्लिकेशन इतना अच्छा नहीं है कि हम उसको देख पा रहे थे, ठीक है? या जैसे अगर या आप कोई चीज़ अच्छी बना रहे हैं, वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? ठीक है। हम्म, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जितने लोगों को जानता हूँ एजेंसी में, या मुझे जितना पता है अपना थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ बहुत क्रिएटिव लोग हैं, ठीक है। हम्म, और अगर आप कभी किसी को कह दें कि यार यू हैव फुल फ्रीडम टू थिंक अबाउट इट, तो आई थिंक वी कैन डू वी कैन डू वंडर्स, बट एट द सेम या टाइम आपको ये चीज समझनी पड़ती है। इट्स अ बिजनेस थिंग, ठीक है। यू हैव सर्टेन सेट ऑफ बाउंड्रीज जो कि आपको सोचनी पड़ती हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट योर आइडिया, इट्स अबाउट द ब्रांड पर्सपेक्टिव, कि उस ब्रांड का पूरी की पूरी इज्जत लगी हुई होती है कमर्शियल पे। और या पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान इज लाइक गोइंग इज लाइक 1-0, या तो अच्छा है या तो बुरा, और अगर वो बुरा है तो पाकिस्तान में आप किसी भी चीज को उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम्म, एनी वन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। उनको लगेगा कि यार ठीक है, ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है, तो वो दीन के साथ भी डाल सकते हैं, वो उनको कुछ और बेहतर लगे तो वो उसके साथ भी डाल सकते हैं। और मुझे हम्म, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इसकी एक और बड़ी वजह ये है कि हमारा बायर इतना एजुकेटेड नहीं है। इंडिया का बायर बहुत एजुकेटेड है, ठीक है, क्योंकि एट बिकॉज द उनका उनकी या उमर उनकी पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री है जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत इजीली डाइजेस्ट करना उनको सिखाया है। मतलब उनका जॉनरा पूरा ये जो ह्यूमर के ऊपर है, ये ऑल दीज गोविंदा स्टाइल मूवीज। हमारा अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग फ्लरिश कर रहे थे, तो हमने अपने ड्रामों के अंदर भी या हमने बाकी मूवीज के अंदर भी कभी इस तरह से काम नहीं किया, ना उस चीज़ को ऐसा प्रमोट किया। मतलब मूवीज़ आपको पता है, हमको पता है कि हमने कितनी पाकिस्तान में पाकिस्तानी मूवीज़ देखी हैं या सिनेमा जाके देखी हैं। अब हम शर्मा हुसूरी चले जाते हैं कि यार नई फिल्म रिलीज़ हुई है, वी शुड बी सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ दैट होल कल्चर। सो इसी तरह वो एक ह्यूमरस चीज़ हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर, वो ये शोज़ होते थे जो उमर शरीफ और मोइन अख्तर के होते थे। लेकिन मतलब वो थिएटर में भी कितने लोग गए होंगे, और उन्होंने फिर क्या हुआ, मतलब वो भी खत्म ही हो गया एक तरह से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तो ये वो चीज है कि ये फॉरेन से चेंज नहीं होती, ठीक है। आपको अगर आपको पूरा इंडस्ट्री के अंदर शिफ्ट लेकर आना होता है, अगर आपको पूरी की पूरे मुल्क में चीजों को 360 चेंज करना है, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ती है। आपके आपका मैं पॉइंट मैं बिल्कुल। मैं वैसे बताता हूँ, मैं कोशिश पूरी करता हूँ। द फर्स्ट आइडिया आई थ्रो विद इन द बोर्ड रूम और विद द क्लाइंट इज
mostly Thank you, the the thank you, case. thank you so much for this saying this because when I see people layman जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से और वो कहते थे कि यार हमारी हमारे लोग क्या ऐड बना रहे हैं कोई तरीका है देन वी नीड टू रियलाइज कि उन्होंने उनका जो हमेशा जो पहली पिच होती है ना अगर वो बन जाए तो शायद वो ना हो जो आप टीवी पे देखें ठीक है Yeah. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द ब्रांड कॉल कि वो क्या समझता है हमको क्या चीज चाहिए तो आई थिंक क्रिएटिविटी को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए बट आई थिंक अब वो टाइम आ गया कि हमारे पास ऐसे डिफरेंट डोमेन भी होने चाहिए एजेंसीज को या एटलीस्ट एजेंसीज कोई ऐसी चीज कर ले मैं मेरे दिमाग में एक चीज होती है कि इंटर कैंपस स्पोर्ट्स होते थे ना जिसमें किसी को पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना होता तो बस आपस में ही चीजें चल रही होती तो मे बी देर इज एन इंटर कैंपस इंटर एजेंसीज टैलेंट थिंग See, जहाँ पे आप कुछ भी बनाए और एजेंसीज ग्रो करें और एजेंसीज हाईलाइट हो ठीक है व्हाई आई रियली वांटेड टू डिस्कस दीज थिंग्स विद यू बिकॉज अगर मैं किसी ऐसे बंदे से बात करूं जो 4-5 साल से है ना और उसने सिर्फ एक ही साइड देखी है कॉइन की तो मैं उससे दूसरी साइड पूछ नहीं सकता ठीक है और ये एक ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जितना आप लोगों को ये बारे में बताएंगे लोग आपको सही से समझना शुरू करते हैं ठीक है okay. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे बताएं नहीं कि यार हम टीम पिच करते हैं और ये जो आइडिया तुम देख रहे हो जो फाइनल चल रहा है वो इनिशियली मेरा आइडिया था नहीं तो जो फाइनल जब मैं देखूंगा तो मैं तो आपके बारे में परसेप्शन वही बनाऊंगा ना आप काम करते हैं इस कंपनी के लिए ये ब्रांड के लिए आप काम करते हैं इस ब्रांड का एड है तो उसका मतलब आपने ये लिखा है तो बिफोर मी सेइंग टू यू कि यार तुम्हारा कौन सा आइडिया पिच हुआ था मैं आपसे ये कहता हूँ क्या बनाया यार ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि ताकि लोगों को पता तो चले Okay. यूनिवर्सिटी से एडवर्टाइजमेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट ग्रेजुएट होने वाले को ना उसको सिर्फ ये पता होता है कि मुझे बड़े ब्रांड्स के लिए काम करना है ठीक है बट इट्स अ प्रॉपर मैथ ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि जितना जितना पॉलिटिक्स एजेंसी लाइफ के अंदर होता है ना उतना कहीं नहीं होता ठीक है क्योंकि आप बिल्कुल बहुत सही सारी है। चीजें देख रहे होते हैं और आपको बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए लेट गो करनी होती हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने आप को भी सेव रखना होता है सही है सही है। द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस ऑन दिस सेशन इज एवरी ईयर बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं हर एजेंसीज सब कुछ जीत रही है ठीक है तो क्या एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इसी चीज के लिए हो जाता है कि पूरे साल एड्स बनाओ ताकि हम कमर्शियल्स के एड जीत सकें क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग इज के आई डोंट वांट टू नेम any awards but each month or each year certain number of award happen और हर एजेंसी ने कुछ ना कुछ जीता होता है Okay. ठीक है तो Last व्हाट last last year we did not. नहीं We did not win. I'm not saying about it but मुझे ऐसा लगता है कि it is very good to have this thing क्या ठीक है यार हमने जो चीज बनाई है लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं बट ऐसा क्यों होता है कि वो सिर्फ वही ना रह जाए ना क्योंकि जब अच्छे एड्स बन रहे थे तो तब भी तो तब जरूरी नहीं है कि मतलब आप अवार्ड्स अवार्ड्स का मतलब क्योंकि पता नहीं बोलना चाहिए आप चाहें तो आंसर देना दें आई हैव हर्ड दैट दीज आर ऑल प्लान मतलब सबको सब पता होता है अच्छा, बहुत सारी चीजें जैसे होती हैं। यस, अवार्ड्स आर आर इंटरेस्टिंग। एक एक रिकग्निशन का प्लेटफॉर्म है, जो कि हो रहा है। एंड दीस आर ऑल पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। सो सो लेकिन लेकिन ये है कि यस, शुरू शुरू के अंदर कभी ऐसा होता था कि हर चीज को जो है ना, हर एजेंसी को अवार्ड मिला। अच्छा, देखो, जो जैसे तुमने शुरू की ना बात में, उसके अंदर एक बात ये थी कि आपकी टोटल 15 एजेंसीज हैं अगर पाकिस्तान के अंदर, राइट? और 15 एजेंसीज के कोई मल्टीपल ब्रांड्स हैं, और उन ब्रांड्स के अंदर कोई ना कोई तो जीतेगा, तो आपको वो अवार्ड आसानी से मिल जाता था। बट जो क्राइटेरिया है ना, वो मुझे लगता है कि वो होता जा रहा है स्ट्रिक्ट। शुरू शुरू के अंदर हो सकता है, आई मीन, मुझे नहीं पता क्योंकि बिहाइंड द कर्टन्स क्या होता है, लेकिन हो सकता है कि शुरू के अंदर उन्होंने थोड़ा सा ईज किया हुआ हो, जैसे आप लोगों को प्राइम करते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर मिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है। और इट्स नॉट लाइक कि क्रिएटिविटी का अवार्ड मिलता है, वो मार्केटिंग इफेक्टिवनेस का होता है। कि फर्ज कर लें आपकी प्रॉब्लम ये थी कि चीज़ें बिकनी बंद हो गई थी, या प्रोडक्ट के अंदर आपकी कोई जो है ना वो प्रॉब्लम आ गई थी, या आपने उसको वापस से फिक्स किया। आपने अपना प्लान बनाया कि इस परसेंट बढ़ेगा, वो उससे ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ गया, या इनकी पूरी कैटेगरीज वगैरह बनी हुई होती हैं।
उस कैटेगरी को अगर आपने स्मार्टली प्ले कर लिया ना तो आपको मिल जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक कि शर्जील ने फॉर इंस्टेंस कोई बहुत क्रिएटिव ऐड बनाया है और उसके ऊपर तो उसको ग्रैंड प्री मिलना ही मिलना है। नो, हम्म, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज चाहे वो क्रिएटिविटी के अंदर जितना भी अच्छा स्टोरी टेलिंग उसकी जितनी भी फनी हो, अगर वो आपके कंपटीशन के साथ एक सर्टन उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, वो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। अक्सर आपको नहीं भी मिलते। वो लग रहा ये होता है कि हर को मिल रहा है क्योंकि वो लिंक्डइन के अंदर एक खास पूल है जो कि वो शेयर कर रहा होता है बार बार, और आप कहते हैं कि अच्छा इनको भी मिल गया, इनको भी मिल गया, 25 हम्म, अवार्ड इस एजेंसी ने ले लिए, 25 अवार्ड इस एजेंसी ने लिए, तो कौन सी एजेंसी थी जिन्होंने नहीं लिया? तो देर आर उस- मल्टीपल एजेंसीज जो कि और मल्टीपल क्लाइंट्स जो कि अवार्ड में अपने आप को वो भी नहीं करते, पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अगर वो करना स्टार्ट कर दें तो आपका कंपटीशन बढ़ जाए। जब कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा तो उसके अंदर फिर आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो लेट्स से कि अगर 10 एजेंसीज हैं, उनके जो है 15 ब्रांड्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस टेल्को बहुत ज़्यादा करता है, तो मतलब टेल्को जो जो करता है Fair उनको enough, fair enough. करती है। The last thing that I wanted to discuss is you being in the industry for more than 20 years now. You have seen एवरी जनरेशन, ठीक है, आपने ब्रांड्स को बनते, आपने एजेंसीज को बनते हुए देखा है, आपने एजेंसीज को खत्म होते हुए देखा है, आपने या हर चीज देखी है, ठीक है। या एनी 2-3 tips दैट यू वांटेड टू गिव टू अ पर्सन हु वांटेड टू स्टार्ट एंड हु वांटेड टू परस्यू देयर करियर इन द एजेंसी लाइफ इन 2025, ऐसी क्या 2-3 चीजें होंगी जो लॉन्गर टर्म प्लान के लिए उसके लिए ज्यादा बेहतर हो? उमैर, ये सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है, और सवाल ये बहुत बुरा सवाल भी है। वो इस वजह से बुरा सवाल है क्योंकि आज के टाइम जब हम ग्रेजुएट कर रहे थे 2000 के अंदर, वी वर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम वो वाला बैच थे, या वो डिक्लाइन सॉर्ट ऑफ वैसे जिनको एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मैगजीन डिज़ाइन, प्रेस एड्स, बिलबोर्ड्स देख के खुशी हुआ करती थी। ओके। हम्म, और वो देख के हम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का रुख करते थे और हमें लगता था कि जी ये हम चाहते हैं करना और ये काम हो सकता है। ओके। हम्म, अनफॉर्चुनेटली 2025 के अंदर जब मैं एक स्टूडेंट को ग्रेजुएट करता हूँ, और ये मैं बहुत पिछले कोई 5 साल से देखना, मैंने 6 साल से स्टार्ट कर दिया था, because I graduate a lot of students from Karachi University, and when I do jury, they don't talk about advertising agencies like we used to do, because वो जो सारा ग्लैमर था, वो जो पूरा चार्म था एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, वो खत्म हो गया। और वो खत्म क्यों हो गया? क्योंकि लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि यहाँ पे तो पैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, या यहाँ का जो जो शुरू में तुम सवाल कर रहे थे कि ग्रोथ आपकी ऐसी नहीं है कि आपको मिलनी ही मिलनी है, वो फ्लक्चुएट करती है। आप कल का कोई एक ग्रेजुएट देखें जो कि आज क्रिएटिव डायरेक्टर बना बैठा होगा, वर्सेस मी हु हैज टेकन 20 years in becoming an executive creative director, और एट दिस पोजीशन। तो और इवन पैसों का भी ये है कि फ्लक्चुएशन इतनी तेजी से होती है कि आपको पता नहीं चलता। तो ये जो सारी रियलिटीज है ना, बहुत कम हम्म, लोगों के पास अब ये एस्पिरेशन है कि वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर जाए। एंड आई एम सेइंग इट विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड सॉर्ट ऑफ ये बिटर स्वीट सी है, स्वीट तो कहीं से भी नहीं है, बट एक एक है, क्योंकि डिजिटल एजेंसीज बहुत सारी बन गई और वो सारी क्रिएटिविटी अबंडेंस के ऊपर वो उसको प्रैक्टिस कर रही होती हैं। और फिर लाइक शुरू के अंदर तुमने बात की कि एआई आ गया है, तो अगर फर्ज कर लो कि एक कोई स्टूडेंट है जो जिसे लगता था कि वो हाथ से सारी चीज़ें बना सकता है, अभी जो पूरा गिबली आर्ट का एक पूरा एक ड्रामा हुआ है जिसके अंदर सब लोगों ने अपना वो एक एनिमे स्टाइल के कैरेक्टर बनाना शुरू कर दी। मैंने भी किया। मैंने कहा यार इसमें कितनी देर लगती है, 1 सेकंड लगा, आपने अपनी पिक्चर अपलोड की और वो सब चीज़ें बन गई। तो वो जो सारा एक फ़ैसिनेशन थी ना, वो समझे ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। जब वो ख़त्म होना स्टार्ट हुई तो इस इंडस्ट्री के अंदर बचा ही क्या फिर? आप आते यहाँ पे थे इसलिए बिकॉज़ यू वांटेड टू हैव येस मनी, बट एट द सेम टाइम यू वांटेड टू एक्सपीरियंस और एक्सरसाइज़ योर क्रिएटिविटी। अब आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर शक हो गया, सवाल हो गए, और आपको नज़र आने लगा कि यार हम कितना कुछ कर लेंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर कितना कमाते हैं। तो मुझे लगता है कि सो डायर सी एक कंडीशन है पाकिस्तान के अंदर, और शायद पूरी दुनिया के अंदर भी, एंड वी हैव टू सी कि ये किस हद तक जा सकती है, बट वी नीड टू बी रियली ओपन अबाउट इट कि ये हो रहा है। बिकॉज अगर आपका स्टूडेंट कहता है इन 2008 और 9 कि वी डोंट वांट टू गो इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, देयर इज अ रियलिटी टू इट। इट्स नॉट लाइक कि एक स्टूडेंट ने बोला या 5 स्टूडेंट ने बोला, it's a mindset. No,
no art student comes to advertising except for media science. जब media science होना start होगा तो वो एक अलग पूरी story है, उसके ऊपर हम कभी और बात कर सकते हैं Fair enough. कि Fair. media. मतलब हाँ, basically what I think is कि I agree with your point कि now people should at least think before they're doing it. And that was the main idea of people from different industry to get on a platform ताकि लोगों को ये clarity हो कि if anyone is going very high or very low, it's not about कि उन्होंने कोई चीज़ सही या गलत करी, it's about the overall टाइम फ्रेम जो उन्होंने उस एजेंसी या उसके अंदर गुजारा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये करना चाहिए बिफोर दे वांटेड टू ग्रो इन एनी स्पेसिफिक फील्ड, ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको, क्योंकि शुरू में तो हर चीज़ अच्छी लगती है, शुरू में तो आई एम प्रीटी मच श्योर हर बंदे को अपनी इंटर्नशिप भी अच्छी लगती है, बट देन यू नीड टू रियलाइज कि आपका 20s आपके 25 से बहुत अलग होगा, आपका 30s आपके 25 से बहुत अलग होगा, फिर 35 आपका yeah. बहुत अलग होगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। But thank you so much, Shajil. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on this session, discuss about very good things, and I'm pretty much sure थोड़ा सा reality check तो लोगों को मिलेगा ही कि चलो ठीक है, this is how it goes. But thank you so much for your time. It's my pleasure. Just for the audience, if you want to connect with Shajil, you can reach out to Shajil on LinkedIn, and I'm pretty much sure he is very helpful for me. So I'm pretty much sure वो आपको भी बहुत मदद करेंगे इस बारे में. So thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. You're welcome. I thoroughly enjoyed it. It's lovely meeting you, Mahal.